Students, you all are welcomed to this e-content designed for postgraduate classes by MP Higher Education Department. This is for MSc Chemistry third semester students for their paper 4, that is polymers. Module 1 we have seen the introductory aspects of the polymers, and now it is module 2 in which we have a look into the polymerization reactions. Myself, Gagandeep Kaureen, Assistant Professor, Department of Chemistry, Jawaharlal Nehru Government Degree College, Badwa. So let's see the prerequisite, the things that you need to know before going through this session. Simply, you just have a basic knowledge of polymer, and I think that you all have that knowledge. Yeah. In module 1 we have seen the introduction of the polymers, and now you have number of things in your mind, and I believe that with those things in your mind you will be able to understand the polymerization reactions in a very better way. After completion of this module, you students will be able to know the different type of polymerization reactions that are present, the mechanism that are present, or the mechanism through which these reactions are operating, and the conditions that are there to affect these polymerization reactions. So let's get started. We will study three kinds of polymerization reactions, basically condensation, addition, copolymerization, and there is coordination. Okay. First, have a look into condensation polymerization. I think this term is not new to you because you all have seen this term in initial slide, initial module, when we have seen the classification of the polymers. So condensation polymers, molecular formula of the repeat units, it lacks certain atoms that are present in the monomer from which it is formed. In polymer chain, जो मोनोमर जो उसमें यूज हुए हैं उस पॉलीमर को बनाने के लिए, जो हमारा पॉलीमर है उसमें जो रिपीट यूनिट्स प्रेजेंट हैं, उन रिपीट यूनिट्स में कुछ एटम्स जो हैं वो जो इनिशियली जो मोनोमर में प्रेजेंट थे वो उसमें नहीं पाए जाएंगे. Condensation polymerization usually takes place by stepwise intermolecular condensation of reactive groups. These includes esterification, amidation, formation of urethanes, aromatic substitution. All these reactions, they are the examples of condensation polymerization. It is a slow process. Yes, step polymerization is a slower one. Condensation polymerization, it is a slower one when you compare it with the chain growth polymerization. So let's see how the step polymerization it is divided on the basis of the type of monomers that are employed for the synthesis of the polymers. Monomers with one type of functional groups. Either you are using amines, or you are using carboxylic acids, or you are using alcohols, or you are using chlorides. ओके मोनोमर्स अगर उसमें सिर्फ एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि अगर आप अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, सो it is one kind of condensation polymerization. Another, when you are using monomers with different type of functional groups, like when you are using amino acids, in one monomer you are having amine group, you are having carboxylic acid. So when you use these kind of monomers, then the condensation polymerization will fall under this category when you are using different type of functional groups in the same monomer. Monofunctional monomers that you obtain, they are of low molecular weight. Bifunctional, they generally result into linear polymers. And if you are having polyfunctional monomers, like more than two type of functional groups present in the same monomer, then it results into branched or cross-linked polymers. These reactions, they give you example of condensation polymerization between diacid and diols. Diols I have mentioned in red, and diacids with blue. So see, during the reaction of these type of monomers, loss of water molecule takes place. है ना, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है जब हमारा रेड वाला पोर्शन और ब्लू वाला पोर्शन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं. नीचे जो एग्जांपल है वो पॉलीयूरेथेन का है. ठीक है, वहां आप देख रहे हैं
कि जो हमारा साइनेट है और जो हमारा OH है, जब उसमें रिएक्शन हो रही है तो जो हमारी पॉलीमर चेन बन रही है उसमें किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ है। जब हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं तो हमने यही पढ़ा कि उसमें कुछ ना कुछ जो है मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, जो स्टार्टिंग से फ्रॉम द टाइम ऑफ कैरोथर जो हमारा चला आ रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ जो है आपका मॉलिक्यूल जो है उसमें से लूज हो रहा है ना। लेकिन जब हम पॉलीयूरेथेन का फॉर्मेशन देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि उसमें किसी भी तरीके का जो मॉलिक्यूल है उसका लॉस नहीं हुआ है। ठीक, just they have undergone rearrangements and shifts of hydrogen. So, considering the case of polyurethane, the condensation polymers, they were redefined. How they were redefined? Polymers with repeating units, which are joined together by functional units like COO and HCO, sulfide linkages, ether linkages, they all fall under condensation polymers. So वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल का लॉस ही हो। अगर कोई ऐसा पॉलीमर है जो आपको दिख रहा है कि वो किसी फंक्शनल यूनिट से आपस में जुड़े हैं, जैसे कि उसमें कोई एस्टर लिंकेजेस हैं बीच में, जगह जगह पर आ रहे हैं, है ना, या वहाँ बीच बीच में आपको अमाइड लिंकेज दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सल्फर लिंकेजेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको कोई ईथर लिंकेज आपको लग रहा है कि ये बीच बीच में बार बार रिपीट हो रहा है इस पॉलीमर चेन में, तो वो जो पॉलीमर्स हैं उन सभी पॉलीमर्स को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग जगह पर ये पॉलीमर्स यूज होते हैं, लाइक इन मशीनरी, as tanks, gaskets, gasoline hoses, rope, cord, thread, tire cords, garments, etc. Number of places you find condensation polymers, they have their use at those places. यहाँ पर हम जो टर्म यूज करेंगे that is number average degree of polymerization, that is different from the degree of polymerization that we have seen in case of chain polymers, chain growth polymers. कंडेंसेशन पॉलीमर में जो टर्म यूज होती है दैट इज नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, विच इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स पर पॉलीमर चेन। पॉलीयूरेथेन के केस को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर्स दे लैक सर्टेन एटम्स और ग्रुप्स इन द polymer chain that were present initially in the monomers. ओके, सो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इट इज कॉमनली गिवन बाय कैरोथर, आल्सो नोन एज कैरोथर्स इक्वेशन, और जो यहाँ पर आपको P लिखा हुआ है दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज रिएक्टेड एट टाइम T। टाइम T में जितना फंक्शनल ग्रुप का आपका रिएक्ट कर गया दैट इज P, तो 1 माइनस P क्या हुआ, द अनरिएक्टेड फंक्शनल ग्रुप, द पार्ट दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। So, for calculating the degree of polymerization, you have to use this formula that is number average degree of polymerization. Next, have a look into the addition polymerization. Addition polymerization, there are of three types on the basis of mechanism that is involved in the addition polymerization, that is free radical, ionic and coordination. Let's begin with the free radical polymerization. In 1937, Florey showed that free radical polymerization, it proceeds through three steps, that is initiation, propagation and termination. And I myself believe कि कोई भी रिएक्शन अगर है तो उसमें ये तीन चीज़ें हमेशा रहेंगी, वो रिएक्शन इनिशिएट होगी, फिर वो प्रोपगेट होगी और एक टाइम के बाद में वो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। ना कि सिर्फ रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, लेकिन अगर हम एक जनरल वे में देखें सभी रिएक्शंस में ऐसा होता है कि वो इनिशिएट होती हैं, फिर वो प्रोपगेट होती हैं और फिर वो टर्मिनेट हो जाती हैं। यहाँ पर प्रोपगेशन से जब मैं जनरल वे में कह रही हूँ तो उससे मतलब ये नहीं है कि एक के साथ एक ग्रुप जुड़ता जा रहा है, बट वहाँ पर प्रोपगेशन से हम ये मतलब निकालें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इनिशिएट हुई रिएक्शन, फिर वो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ और एक टाइम ऐसा आएगा या तो हमारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए या उसमें कुछ भी कैटलिस्ट में कुछ दिक्कत आ गई या कुछ भी हुआ तो रिएक्शन जो है एक टाइम के बाद में टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें जो है बेसिकली रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो है इनके थ्रू ही प्रोसीड होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब रेडिकल पॉलीमराइजेशन जनरली आपको वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये एग्जांपल है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ ये वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, बिकॉज दे आर रिलेटिवली लेस स्टेबल एंड सो दे आर ससेप्टेबल टू बी अटैक्ड बाय अ फ्री रेडिकल। अगर हमारे पास कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ऐसा कंपाउंड है जैसा कि आपको नीचे रेड में दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CXY टाइप का, और अगर X और Y
ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, अगर ये CH3 से ज़्यादा बड़े ग्रुप हैं तो फिर यहाँ पर अगर आप रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो तो जो पोलीमराइजेशन है होगा, लेकिन स्लो, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। सो फ्री रेडिकल इनिशिएशन हम देख लें, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेप है रेडिकल पॉलीमराइजेशन में। इनिशिएशन में आपको बहुत सारी कई चीज़ें यूज आप कर सकते हो, लाइक विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ ionizing light, certain reagents, passage of electricity. So all these conditions, they are capable to initiate, that is the formation of radical for the initiation of free radical polymerization. Compounds like benzophenones, benzyls, certain organic ketones, they decompose on photochemical treatment and give rise to radicals that participate in the initiation step of the radical polymerization. AIBN, very commonly known organic compound, it decomposes at about 70 to 80 degrees centigrade for free radical formation. So it is a compound of choice. Here you are seeing two compounds. Okay, so in the first one, that is a kind of peroxide. Okay, that's a peroxide. When it breaks from oxygen single bond, okay, it gives rise to this carboxylate. Sorry, I have mentioned benzoyl free radical. It is a carboxylate free radical. Okay, it gives rise to this radical, and further it resulted into the formation of a phenyl radical. So both these radicals, they can initiate the free radical polymerization reactions. Lower here you see it is AIBN. अगर आप इसको फोटोकेमिकल उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाय द पैसेज ऑफ रेडिएशन, आपको ये फ्री रेडिकल यहाँ पर भी मिल जाएगा। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है हमारे इनिशिएटर का, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका जो हाफ लाइफ है हम सभी उसका फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पर आपको जो नीचे ये एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन दिखाई दे रही है, I is equals to 2R radical, that is when your initiator like this, it get converted into two radicals that are able to initiate the photochemical reaction. I will use a term pre-initiation for the formation of this free radical, because this is a pre-step. When the free radical is formed here of the initiator, it results into the initiation of the free radical polymerization by reacting with the monomer unit. So the rate of decomposition, it is represented by the loss of concentration of the initiator with time, and it is the decay constant, okay, the decomposition constant for the initiator. So here the initiation starts. The carboxylate or the phenyl radical that we have seen in the initial slide, now it has been formed. अब वो क्या करेगा, वो मोनोमर ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि अब इसको रिएक्शन जो है उसको इनिशिएट करना है। सो ये स्टाइरीन है, हम स्टाइरीन का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। उसको स्टाइरीन मोनोमर मिल गया, लेकिन अब स्टाइरीन मोनोमर में दो पॉइंट्स हैं, दिस हैश्ड कार्बन एंड द स्टार्ट कार्बन। सी इनिशिएशन इज ऑल्सो स्टेरिकली सिलेक्टिव। ओके, जब यहाँ पर ये दो कार्बन के पास हैं जहाँ पर ये अटैक कर सकता है, आप पाएंगे कि ये कहाँ पर अटैक कर रहा है, हैश्ड कार्बन पर। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये अटैक स्टेरिकली फेवरेबल है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, द स्टार्ड वन, ठीक, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको मिलेगा पॉलीमराइजेशन में। यहाँ से जो पॉलीमराइजेशन है वो आपका इनिशिएट होगा। और अगर फिनाइल रेडिकल है तो वो भी यहीं पर अटैक करेगा टर्मिनल वाले कार्बन पर, और इस तरीके से जो है आपका ये इनिशिएटर अब बन गया और रिएक्शन आपकी अब इनिशिएट हो गई है। यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इनिशिएशन है वो आप देख रहे हैं, जो भी हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन इज फ्री रेडिकल और मोनोमर यूनिट का है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप पाएंगे आर आई इज इक्वल्स टू, हमने लिखा है 2kdf_ni। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आई हैं 2। ये जो 2 है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब इनिशिएटर जो है इनिशियली हमारा वो ब्रेक होता है तो वो दो फ्री रेडिकल बनाता है, इसीलिए यहाँ पर जो हमने वर्ड 2 है उसको यूज डिजिट 2 यूज की है। और F जो है यहाँ पर वो हमारा एफिशिएंसी फैक्टर बता रहा है। एफिशिएंसी फैक्टर, it is a fraction of initiator radicals that are able to react with the monomer। जो हमारे ये initiator radicals बने हैं, ये मोनोमर के साथ में किस तरीके से, कितना उनका जो अमाउंट है, कितना उनका जो फ्रैक्शन है वो हमारे इस मोनोमर यूनिट के साथ में कंबाइन हो रहा है, that is denoted by the efficiency factor and it is a very important component. Next step, as we know, propagation.
अब रिएक्शन इनिशिएट हो गई है, अब उसको आगे ही आगे बढ़ना है, प्रोपेगेट करना है, रुकने का तो भी उसका सवाल ही नहीं है। प्रोपेगेशन इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स इसमें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसा आप देख सकते हैं, है ना, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी रिएक्शन जो है हमारी वो प्रोपेगेट करेगी और पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन करती जाएगी। नीचे जो इक्वेशन है वो रेट ऑफ प्रोपेगेशन को हमारा बता रहा है, और यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ प्रोपेगेशन है वो किसके रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड कर रहा है, ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आवर मोनोमर। नेक्स्ट वन, इट इज द चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, आइदर बाय कॉम्बिनेशन, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन और बाय चेन ट्रांसफर एजेंट्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टर्मिनेशन जहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे दो रेडिकल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ गए और इन्होंने क्या किया, आपस में कंबाइन हो गए एंड दे एंडेड द रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन में जो हमारा ये इकलौता रेडिकल है, इस तरीके से दो रेडिकल्स हैं, यहाँ ये कंबाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ कुछ आपस में एटम्स का एक्सचेंज करके दे लेके समझौता कर रहे हैं, एंड दे आर एंडिंग द रिएक्शन, दैट इज दे आर टर्मिनेटिंग द रिएक्शन। एंड दिस rate of termination, you will see it depends upon the rate of change of the monomer radical. Monomer radical, that is the polymer chain radical. Okay, जो हमारा ये पॉलीमर चेन बना है रेडिकल फॉर्म में, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो जो हमारा चेन टर्मिनेशन का जो रेट है वो इसके कंसंट्रेशन के लॉस पे डिपेंड करता है। सी यहाँ पर हमने माइनस साइन यूज किया है, दैट मीन्स कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगा इस पार्ट का, दैट मीन्स जो हमारा चेन है, जो फ्री रेडिकल, जो हमारा चेन प्रोपेगेशन था वो टर्मिनेशन की तरफ है। नेक्स्ट, चेन ट्रांसफर टर्मिनेशन। चेन ट्रांसफर में क्या होता है, यहाँ पर जो रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं, कुछ दे लेके एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे हैं, बट it takes place with an initiator, either with the impurity, the solvent, or any other additive that is present in the polymerization system. With increase in concentration of the chain transfer agent, what happens? Chain length decreases. क्योंकि chain transfer जो agents हैं, what they are doing, they are terminating the reaction. तो अगर हमने chain transfer agents के concentration को बढ़ा दिया, उनके amount को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जो chain है वो जल्दी terminate हो जाएगी, तो जो chain length है वो reduce हो जाएगी, decrease हो जाएगी। एफिशिएंसी देख लेते हैं, कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो चेन ट्रांसफर एजेंट्स की तरह काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी कैसी रहती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर अनरिएक्टिव अनलेस दे हैव बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने लिया है और उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, माइंड दीज वर्ड्स, अगर हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स नहीं हैं, so it will remain unreactive, it will not react as chain transfer agent. Aliphatic hydrocarbons, they become more reactive when substituted with halogens. अगर हमारे aliphatic hydrocarbons हैं और उसमें halogens present हैं, so with increase in the substitution by halogens, they become more and more active as chain transfer agents. You see, carbon tetrachloride and carbon tetrabromide, they are very quite reactive as chain transfer agents. Okay, let's have a video look for the free radical chain polymerization. जो हमने पढ़ा है उसको हम एक वीडियो के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि जो हम ऑडियो विजुअल सुनते हैं मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है चीज को समझने का। We have 3 steps: initiation, propagation, deactivation. In deactivation, we have termination by a combination or disproportionation, और we have chain transfer. Okay, chain transfer, यहाँ आप एक चीज का ध्यान रखें कि जो चेन ट्रांसफर प्रोसेस है, चेन ट्रांसफर से अगर हम चेन का टर्मिनेशन कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो वहां पर री इनिशिएशन के चांसेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको एक थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं कि क्लास में बहुत से बच्चे हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने अलग अलग बैठे हैं, तो फिर क्या होता है जब एक इनिशिएटर उस क्लास में एंटर करता है। सपोज यू आर हैविंग मोनोमर and you are having number of monomers that are sitting together in the class. They are not reacting, they are not even interacting with each other. Okay, they are sitting like this. Oh my god, don't know what is going to happen. And then what happens? After some time, there it comes initiator, that is the happy molecule.
and what it will do, it will make all of them happy. वो पहले दो इनिशिएटर हैं, मतलब कि दो उसके जो एटम्स हैं, ठीक है, वो आपस में पहले ब्रेक होंगे and they spread the happiness in the whole class. See, the reaction is initiating. Oh hi, come with me. And yes, he got happy. In this way, the reaction has initiated. Now they will propagate. They will make others happy. अब जो एटम्स इनिशिएटर से जुड़े हैं, जो हमारे मोनोमर यूनिट से जुड़े हैं, वो दूसरी मोनोमर यूनिट से जुड़ती जाएंगी एंड इन दिस वे द चेन विल प्रोपेगेट. नाउ इट कम्स टू डीएक्टिवेशन वाया टर्मिनेशन. अब बहुत लोग हैप्पी हो गए, अब हमें उसको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंडमनेस भी अच्छी नहीं है. तो वो कैसे स्टॉप करेंगे? दे विल कंबाइन विद ईच अदर. ठीक है, अभी उनका एक एंड फ्री था, अब उन्होंने उस एक एंड को क्या कर लिया, एक दूसरे से कंबाइन हो गए उस फ्री एंड से. एक मोनोमर रेडिकल लिए, एक पॉलीमर चेन रेडिकल लिए, एक पॉलीमर चेन रेडिकल लिए. नाउ दे आर गेटिंग कंबाइंड टू ईच अदर एंड वहाँ पर जब वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो जो उनकी जो रिएक्टिव साइट है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी और इस तरीके से जो चेन है वो दो पॉलीमर रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से टर्मिनेट हो जाएगी. सी, here they go, they combine with each other like this. See, number of polymer chains, they are combining with each other and terminating the chain. Then next one, disproportionation. What they will do, वो आपस में एक दूसरे से कुछ बांट के, जो उसके पास ज्यादा है वो ले लिया, जो मेरे पास ज्यादा है उसको दे दिया, इस तरीके से with the exchange of atoms. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक पॉलीमर चेन जो रेडिकल है वो दूसरे पॉलीमर चेन रेडिकल को कोई एटम दे देगा, फिर डबल बॉन्ड ले लेगा और इस तरीके से उसको जो एक्टिव साइट है एक दूसरे की वो ब्लॉक हो जाएगी और जो चेन है हमारी वो टर्मिनेट हो जाएगी. सी, व्हाट दे आर डूइंग, wow, they are sharing their atoms, sorry, they're transferring their atoms to one another and this way they're terminating the chain. Then it comes deactivation via chain transfer. चेन ट्रांसफर वी हैव सीन, वो कुछ भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो सकता है, वो इनिशिएटर हो सकता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है. लेकिन जब यहाँ पर चेन ट्रांसफर के द्वारा डीएक्टिवेशन होगा तब ये जो आपस में दोनों साथ में आ रहे हैं ना, इनका एक जो रेडिकल पार्ट है वो यहाँ पर इस फ्री रेडिकल वाली जो उसका एंड है वहां आकर के जुड़ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो ये दूसरा फ्री रेडिकल रह गया, इट विल रीइनिशिएट द रिएक्शन. फिर वो जाकर के दूसरे जो मोनोमर यूनिट्स क्लास में बैठी हैं उनसे जाकर के फिर वो इंटरेक्ट करेगा. सी, ये कंबाइन हो गया और वो फिर फ्री हो गया and now he is going and saying hi, come with me, and again we will start the propagation of the reaction. So this way the whole reaction will happen. Okay, now come to popular polymerizations. Popular polymerization techniques actually. We have seen the type of polymerization reactions, but how they are happening, in what systems, what type of systems they are happening, we have just an introductory part in this module and we will study in detail in the next module. So it is bulk, where monomer soluble initiator and chain transfer agents are present in the system. Solution, when monomer initiator soluble in the solvent, they are used. Okay, in solution we are using solvents, but in bulk we are not using solvent. Next one, suspension. Water insoluble initiator and monomers, they are used together in this system for polymerization reaction. Then emulsions. In emulsions we use water soluble initiator. In suspension we were using water insoluble, and in emulsion we will use water soluble initiator, chain transfer agent and a surfactant along with the monomer. Okay, don't miss the monomer. So this will be the emulsion technique for polymerization reaction. Then we begin with the ionic polymerization. We have seen the free radical polymerization. Now we will have a look into the ionic polymerization. Ionic polymerization, ions, there are two types, either cation and anion. So polymerization is also of two types, either cationic polymerization or the anionic polymerization. Cationic polymerization, it requires monomers that have electron releasing groups. Why? Because जब cationic polymerization होगा तो हमारा जो cation है, क्योंकि वो reaction को initiate कर रहा है, तो obviously जो हमारा
पॉलीमर का जो चेन बन रहा है उसका जो एक एंड है वो कैटायनिक फॉर्म में होगा, है ना। तो उस कैटायन को स्टेबल करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसलिए मोनोमर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू जाएंगे, और ऐसे मोनोमर्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एंड है हमारा, जो एक सिरा है हमारी पॉलीमर चेन का, वहाँ पर एनायनिक मोइटी रहेगी। तो उस एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की जरूरत है, ठीक। Ionic polymerizations are therefore they conducted in low or moderately polar solvents because they have charge on them. So it is not a good idea to use a polar solvent for them. अगर हम प्रोसेस कंट्रीब्यूशन देखें फ्री रेडिकल, कोऑर्डिनेट, एनायनिक और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की, अगर हमारे पास विनाइल पॉलीमर बन रहे हैं तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन बाकी प्रोसेस से सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 50%। मतलब कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो है हम ज़्यादा अमाउंट में पॉलीमर को जो बना सकते हैं, या कहना चाहिए कि जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन पाथवे का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर्स। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हम पहले देख लेते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हमें क्या चाहिए, ल्यूइस एसिड प्लस ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन कंटेनिंग ल्यूइस बेस। ल्यूइस एसिड हमने BF3 जो है वो यूज़ कर लिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, as a Lewis base which is having a trace amount of proton, because proton is the actual initiator in the cationic polymerization. See यहाँ पर जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। यहाँ पर ये H प्लस जो हमारा पार्ट है, जो प्रोटोनिक पार्ट है, दैट इज द एक्चुअल इनिशिएटर, और ये साथ में जो इसका नेगेटिव पार्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए जो इसका काउंटर आयन है दैट इज नोन एज जीजीन आयन, ओके। Polymers of formaldehyde, polyacetals, they form through cationic polymerization. Next one is the propagation. Okay, propagation. अब ये कार्बोकैटायन हमारा पीछे बन गया था, अब ये नेक्स्ट मोनोमर जो इसको मिला है मिक्सचर में उसके साथ कंबाइन होगा एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड दिस वे। जब हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हर बार जो हमारा पॉलीमर चेन का जो एंडिंग वाला पोर्शन है वहाँ पर जो है कैटायनिक पार्ट रहेगा, और उसके साथ में ये नेगेटिव आयन जो है उसको स्टेबल करने के लिए हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम जीजीन आयन कह रहे हैं। रेट ऑफ प्रोपेगेशन हमारे मोनोमर और इस कैटायनिक पॉलीमर का जो हमारा पार्ट है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि ये साइड यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने पढ़ा था कि जब कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो रहा है उस टाइम पे वो मोनोमर यूनिट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इस कैटायन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको स्टेबल रखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों मोनोमर यूनिट में। टर्मिनेशन, it's a first order reaction, dissociation of macrocarbocation GGN complex। ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। डिसोसिएट होकर के वो जो हमारा कैटलिस्ट को कैटलिस्ट है वो अलग हो जाएगा और पॉलीमर चेन मिल जाएगी, और उसमें चेन ट्रांसफर भी हो सकता है। चेन ट्रांसफर अगर हो रहा है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारा मोनोमर जो है, क्योंकि हमने देखा था चेन ट्रांसफर एजेंट वो सॉल्वेंट हो सकता है, वो आपका मोनोमर यूनिट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मोनोमर यूनिट है वो अगर चेन ट्रांसफर एजेंट की तरह काम कर रही है तो ये इस तरीके से हमारा पॉलीमर बन जाएगा इसका, और ये जो है यहाँ पर इस तरीके से कैटायन में चेंज हो जाएगा एंड इट कैन री इनिशिएट द रिएक्शन। तो हमारा जो रेट ऑफ चेन पॉलीमराइजेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, resonance stability of the carbonium ion, stability of the GG ion and electropositivity of the initiator। नेक्स्ट है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, उसके नाम से ही क्लियर है, उसमें जैसे वहाँ कैटायन था इनिशिएटर, यहाँ पर एनायन होगा। इनिशियली अल्कली मेटल्स एंड लिक्विड अमोनिया दे वर यूज्ड एज इनिशिएटर, बट आफ्टर 1940 दे वर रिप्लेस्ड बाय मेटल अल्काइल्स सच एज एन-ब्यूटाइल लिथियम। सो ये एनायनिक इनिशिएटर का पार्ट हो सकते हैं। And termination, it usually occurs by a chain transfer process in case of anionic polymerization। Anionic polymerization में जो termination है वो generally किससे होगा, chain transfer process से होगा। ये एक उसका एग्जाम्पल है, अगर हम स्टाइलिन का पोलीमराइजेशन करवा रहे हैं विद
पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। सो द रिएक्शन जो है वो इस तरीके से प्रोपेगेट होगी। यहाँ पर हमें एनायन मिल गया। इनिशियली हमारा जो इनिशिएटर है अब वो हमारा जो मोनोमर है उसके साथ कंबाइन होगा। It will initiate the reaction, then it will propagate in this manner. And क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था अभी स्टार्टिंग स्लाइड में कि जो पोलीमराइजेशन जो हमारा एनायनिक पोलीमराइजेशन है वो जनरली चेन ट्रांसफर एजेंट जो है उनका यूज करके वो रिएक्शन जो है टर्मिनेट होती है। तो यहाँ जो लिक्विड अमोनिया जिसको हमने एज अ सॉल्वेंट यूज किया है वो यहाँ पर चेन ट्रांसफर एजेंट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर इस रिएक्शन को जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा इनिशिएटर था, एनायनिक इनिशिएटर था, वो यहाँ फाइनली हमें फिर से मिल गया है और इस एनायनिक इनिशिएटर का यूज करके सिस्टम जो है वो वापस से अपनी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट है coordination polymerization. Coordination polymerization, it was discovered in early 1950 that led to the polymers with stereospecific structures. ठीक, बेसिकली कोऑर्डिनेशन पोलीमराइजेशन जो है वो जिगलर नाटा सब कॉमन नाम है, सब जानते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में। उनकी कैटलिस्ट डिस्कवरी से ही जो है स्टार्ट हुआ है। Ethylene is polymerized to a highly linear chain in contrast to the products of radical polymerization through coordination polymerization. This slide represents the various forms of the Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst is a combination of organometallic compounds with transition metal salts. Okay, so these number of combinations you can see for Ziegler-Natta catalyst that you are seeing in this slide. Let's have a look into the mechanism of the coordination polymerization. The M which you are seeing here, it is monomer. M जो है ये monomer है, Tm जो है वो transition metal compound है और Ar जो है वो metal alkyl है, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा Ziegler-Natta catalyst है वो इन दोनों के combination से बना है। Initiation में क्या होगा, जो हमारा monomer unit है वो यहाँ पर आता जाएगा, जो हमारा A और R प्रेजेंट है इनके बीच में। ठीक है, ऐसा जब हुआ रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी, फिर हर बार जो मोनोमर यूनिट है वो यहाँ जुड़ेगी और यहाँ से फिर ट्रांसफर होके हमारे मेटल और अल्काइल के बीच में लग जाएगी और इस तरीके से जो रिएक्शन है वो प्रोपेगेट होगी। ये बीच में हमारी जो पॉलीमर चेन है वो बढ़ती जा रही है विद द एडिशन ऑफ मोनोमर। टर्मिनेशन जो है यहाँ पर वो मोनोमर ट्रांसफर से हो सकता है, यहाँ से मोनोमर जो हमारा पॉलीमर है वो ट्रांसफर हो जाए और इसकी जगह पर मोनोमर यूनिट आकर के जुड़ जाए। तो ये पॉलीमर चेन निकल गई बाहर और ये मोनोमर यहाँ पर आके जुड़ गया और इस तरीके से रिएक्शन जो है टर्मिनेट हो गई। या फिर टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव साइट। जो R है, जो अल्काइल ग्रुप है इस पॉलीमर चेन के साथ में जुड़ा हुआ है, इफ समहाउ ये पूरा पार्ट अगर यहाँ से अलग हो जाता है तो ये जो पोर्शन रह गया है अब ये इनएक्टिव रह गया है, ये अब जो रिएक्शन है उसको प्रोपेगेट नहीं कर सकता और ये हमें पॉलीमर चेन हमारी जो है वो मिल गई है। ठीक है, इस तरीके से भी जो है टर्मिनेशन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो सपोर्टेड मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी किया जा सकता है, बिकॉज रिसर्च इट इज हैपनिंग एवरी डे। सो कल जो कैटलिस्ट यूज हो रहा था हो सकता है आज वो किसी दूसरे कैटलिस्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो सपोर्टेड मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी हो सकता है, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल मेटल्स, जिरकोनिया, टाइटेनिया एटसेट्रा, सपोर्टेड ऑन सिलिका, जिरकोनिया एंड टाइटेनिया। Then it comes copolymerization. Copolymerization को हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में देख लिया था, थोड़ा सा उसका हमने इंट्रोडक्टरी देख लिया था कि अगर दो अलग अलग टाइप के मोनोमर से मिल करके कोई पॉलीमर बन रहा है तो उस पॉलीमर को हम कोपॉलीमर कहेंगे। ये रैंडम, अल्टरनेटिंग, ब्लॉक और ग्राफ्ट फॉर्म में अरेंज हो सकता है। रिएक्टिविटी रेशियो है इसके लिए इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोपेगेशन रेट कांस्टेंट। जो हमारे अलग अलग मोनोमर हैं उन अलग अलग मोनोमर्स का, ठीक है, कंबाइनली जो उनका रेट कांस्टेंट है उसके साथ में अगर हम रेशियो निकालते हैं, जैसे मोनोमर 1 है उसका जो रेट कांस्टेंट है अपना, अगर हम उसको कंबाइन वाले के साथ में निकालेंगे तो वो R1 उसका हमें रिएक्टिविटी रेशियो मिलेगा। ऐसे ही सेकंड मोनोमर का रिएक्टिविटी रेशियो मिलेगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे ये डिसाइड हो सकता है कि कोपॉलीमर जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लाइक अगर जो प्रोडक्ट है रिएक्टिविटी रेशियो का इट इज नियरली 1 तो जो कोपॉलीमर है उसमें अरेंजमेंट रैंडम होगा कि जैसे एक मोनोमर लग गया फिर उसके बाद में दूसरा लगा, फिर वही वाला लगा, फिर वही लगा, फिर कहीं बीच में फिर एक ए मोनोमर आ गया, फिर ए लग गया, फिर कहीं बीच में बी लग गए, फिर कहीं ए लग गए। तो इस तरीके से अगर रैंडम अरेंजमेंट है हमारे मोनोमर्स का
अगर हमारा जो ये रिएक्टिविटी रेशियो है दोनों मोनोमर्स के, अगर इनका जो प्रोडक्ट है आपस में R1 इंटू R2 अगर हम करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट नियरली 1 आता है, तो जो कोपोलीमर है उसका जो अरेंजमेंट है उसमें मोनोमर यूनिट्स का वो कैसा होगा, रैंडम होगा। वहीं अगर हम R1 और R2 इन दोनों रिएक्टिविटी रेशियोज का प्रोडक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट नियरली 0 हमें मिलता है, तो जो अरेंजमेंट होगा हमारी मोनोमर यूनिट्स का उस कोपोलीमर में वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। और अगर इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, मान लो R1 की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है या R2 की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है, उस केस में जो हमें कोपोलीमर मिलेगा उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, ब्लॉक फैशन में होगा। ब्लॉक ये कुछ उसके कहना चाहिए यूजेस हैं या कुछ एग्जांपल्स हैं। ब्लॉक कोपोलीमर्स जो हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ्ट कोपोलीमर्स जो हैं they can be used for high impact plastics. Block and graft copolymers, they can be produced either by step or by chain reaction polymerization. Principal block polymers are thermoplastic elastomers and elastic fibers such as ABS. ABS is a polymer of acrylonitrile, butadiene and styrene. Next, copolymers of vinyl chloride and vinylidene chloride, they were introduced in 1930s. Vinyl chloride और vinylidene chloride का जो copolymer है 1930 में उसको introduce किया गया था। कोपोलीमर जिसमें बहुत ज़्यादा विनाइल क्लोराइड का कंटेंट है, इट इज़ यूज्ड एज अ प्लास्टिक फिल्म। और वो कोपोलीमर जिसमें विनाइलिडीन क्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है, इट कैन बी यूज्ड एज अ फिल्म और एज अ फिलामेंट। इस तरीके से आपको यहाँ और भी एग्जांपल्स जो हैं वो कोपोलीमर्स के देखने को मिलेंगे इस स्लाइड में। फर्दर रीडिंग के लिए मैं आपसे कहूँगी कि ये वाली बुक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, और फिर से वही चीज़ कि आप नेट पे बहुत सारा मटेरियल पॉलीमर्स से रिलेटेड आपको मिल सकता है, बट keep your mind in open condition when you are studying, either from a book or from a net. Always be attentive what you are reading, whether it is right or wrong. Okay, so always refer books and अब तो हमारे पास नेट है तो हमारे पास पूरा खजाना है इंफॉर्मेशन का, हम बहुत कुछ जो है वो गेन कर सकते हैं नॉलेज। Now again access yourself. We have 2 to 3 questions, so you will be able to know that कि जो आपने इतना स्लाइड्स में देखा वो आपको कितना समझ में आया। What will be the effect of increase in temperature on the chain length of a polymer? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं पॉलीमर सिस्टम का, तो चेन लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? So what happens? It decreases with increase in temperature. Arrange the following in order of decreasing efficiency as chain transfer agent. जो आपको नीचे केमिकल्स दिए हैं उनको आपको ऐसे अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर एफिशिएंसी एज चेन ट्रांसफर एजेंट। मतलब कि जो सबसे अच्छा चेन ट्रांसफर एजेंट है उसको आपको पहले रखना है और फिर ऐसे आपको उससे कम ऐसे रखते जाना है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास में एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं और अगर उनमें हैलाइड्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो वो एक अच्छा चेन ट्रांसफर एजेंट जो है हो सकता है। लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें 4 हैं, देन क्लोरोफॉर्म उसमें 3 हेलोजेंस हैं, फिर इथाइल क्लोराइड उसमें 1 हेलोजन है, और लास्ट में टॉल्यूइन, क्योंकि टॉल्यूइन में कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इट इज़ अ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये सबसे वीक सो ये चेन ट्रांसफर एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द चेन ट्रांसफर एजेंट। Which of the following will give a polymer when condensed with adipic acid? So इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन डायमीन, क्योंकि इनके दोनों साइड्स में जो हैं हमारी रिएक्टिव मोनोमर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं, so they will easily react with the adipic acid and lead to the formation of polymer. Which condition would be more apt to produce stereoregular polymers? So low temperature. If you want to produce a polymer with stereoregularity in it, then the temperature of the reaction should be kept low. So finally, thank you students for your patience listening, and I hope that you have enjoyed the module 2 of the polymer chemistry unit 1. We will meet again in the third module of the polymer chemistry. Thank you very much.